Along with the constant studying hours, it is very important to take care of your physical health as well. And this is what our champion believes in. She is NTSC Stage 2 qualified, and in NSCB, she has been in top 1% in her state. So let's welcome Sanya to the stage with a huge round of applause. सबसे पहले तो सानिया many congratulations on scoring this well in NEET 2023. लेकिन मैं जानना चाहूँगी, when did you think of like choosing medical? So first of all, I was fascinated by science from very beginning. Like I used to enjoy it a lot, but whether to choose maths or biology was kind of confusing. So in 9th standard, मैंने अपने relatives वगैरह को देखा, जो मेरी maternal family है, almost सारे ही doctors हैं. So they inspired me to become a doctor, and धीरे धीरे फिर biology में भी interest बनता रहा. So eventually I chose medical. So you were in the foundation course, right? So Yeah. how did it help you finally in NEET 2023? How has the journey been? So पहले तो मेरा goal NTSC था, like I have qualified stage 2 NTSC. So it was the primary goal in 9th and 10th standard, but it has also helped me during my NEET preparation a lot because the concepts are almost the same, it's just in detail. So first of all, it makes you confident about the concepts, like you have studied it before only, and you know how to study, what approach, strategies, planning, you know it very well from the very beginning. Because you have first only, हम curriculum के साथ पहले ही जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना चाहिए, और अपनी हेल्थ पर कैसे फोकस करना है उसके साथ. How did you manage on your time? Because अपनी physical health को भी equally importance आपने दी है, we've known. How did you manage on your day? कि अच्छा मुझे इतना time योगा करना है या जिम जाना है and इतना time बैठ के पढ़ाई करनी है. How did your day look like? So in +1, it was more of gym and workout and less studying. But yeah, in +2, I was more focused on studying. Gym was 1 to 2 hours. So it managed well. I think मतलब इतना टाइम हम वेस्ट जो करते हैं बाकी चीज़ों में, ऐसा 24 आवर्स हैं, आपकी 4 to 5 आवर्स क्लासेस लगती हैं, आप 6 आवर्स पढ़ लोगे सेल्फ स्टडी, उसके अलावा भी इतना टाइम है सोने के अलावा, वो हम वेस्ट कर देते हैं. बस उसको यूटिलाइज करना है, like utilize the interstitial spaces. ऐसा हाँ. Talking about worrying, were you worried the day before the exam? No, I was really cool the day before my exam because I was just roaming outside. Books मैंने छोड़ दी थी one day before. ना मैंने NEET वाले दिन कुछ पढ़ा. So I was really cool on the day itself and the day before. So yeah, उसमें भी like मेरे cousins का बहुत रोल था. They took me out. ताकि मैं ज़्यादा वरी ना हूँ, एंड उन्होंने ही कह दिया था कि तूने बुक्स तो उठानी ही नहीं है, तो इसलिए मैं काफ़ी कूल थी, काम, पेपर भी, मतलब अच्छी बात रही वो चीज़ मेरे लिए. राइट. एंड या मेरे फादर ने भी बहुत हेल्प करा उसमें. सो माय फादर यूज्ड टू प्रैक्टिस योगा, सो ही केप्ट मोटिवेटिंग मी टू प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर द डे इटसेल्फ, सो इट ऑल्सो हेल्प मी टू स्टे काम ऑन द डे. These future NEET aspirants also need some motivation from you, because the calmness that is, coming from you, they would also want it to be कि मैं exam day से एक दिन पहले किताबें छोड़ दें. So they have a few questions and queries to ask. So let's open the floor to them. Yeah. Please. Hello. First of all, many congratulations to you. Thank you. First, I want to ask you, what is your strategy of doing the paper? Which you solve first, biology, physics, or chemistry? Biology. Biology. I have to ask you a question. If biology takes a lot of more time, and you don't have time for physics or chemistry, so do you panic or do you feel the OMR wrong? Is there anything? My strategy was basically I used to do biology maximum 40 minutes, like even if it's lengthy 50 minutes लग जाएंगे. So उस टाइम पे ऐसा होता था कि केमिस्ट्री जितनी जल्दी हो पाए, कोई क्वेश्चन अगर पहली बार में नहीं निकला छोड़ दो, क्योंकि बायोलॉजी में पहले ही टाइम लग गया. बायोलॉजी में आपको पता लग जाएगा कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको फिर भी ट्राई करने की रहती है कि है ना. तो अगर एक बार में नहीं हुआ उस टाइम के लिए छोड़ दो. एंड उसके बाद मैं बायोलॉजी की OMR फिल करती थी, वो क्वेश्चंस छोड़ के
जो मेरे को डाउटफुल हैं, ऐसा होता था। तो उस कारण मेरे को ये रहता था कि मतलब आधी OMR तो मैंने फिल कर ली है ऑलरेडी, बस अब फिजिक्स सॉल्व करनी रहती है। सो उसके लिए मेरे पास 1.5 आवर होता था बड़े आराम से। तो ऐसे लाइक मैक्सिमम 50 मिनट्स टू बायोलॉजी, मैक्सिमम, लाइक अगर पेपर लेंदी है तब भी मैक्सिमम 50 मिनट्स। उसके बाद हाफ एन आवर टू केमिस्ट्री, हाफ एन आवर में हो जाती है केमिस्ट्री। और फिर OMR 10 मिनट्स लगते थे मुझे बस बायोलॉजी के अच्छे से फिल करने में। तो उसमें गलती नहीं होती, क्योंकि आप पहले आप अगर एंड में पूरी OMR फिल करोगे ना, आपको होगा कि टाइम कम रह रहा है, तो आप उसमें हड़बड़ी में गलत कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले फिल करके रख लोगे तो आपको एंड में थोड़ा ये भी रहेगा कि चलो पहले थोड़ी सी कर रखी है फिल, और वो भी सही हुई होगी जो पहले करोगे। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बाकी यू हैव टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू वेल। बायो में एनसीईआरटी की लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कर दे तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो आपने जब क्वेश्चन पेपर अपना नीट का देखा होगा तो आपको पहली नज़र में वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव पता चल गया? मेरे को याद भी नहीं है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव वाला ऐसा कोई मतलब कोई स्टेटमेंट आपको देखते ही पहचान गया कि एनसीईआरटी में तो ये रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पर स्टेटमेंट? ऐसे था कि देखो, जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको कुछ कुछ चीजें पता लगेंगी। फिर उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे हर बार नई चीज मिलेगी। लेकिन एंड में ना मेरे को ऐसे हो गया था लास्ट के महीने में कि मैं पूरी एनसीईआरटी ना फिर से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। कुछ भी लाइन उठा के डाल दी फिर मेरे को, मतलब ऐसे, क्योंकि ना अगर बायो में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, मतलब जो हमारे टेस्ट के क्वेश्चन थे आकाश के, कि अगर आप अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे तो वो गलत है, पर अगर एनसीईआरटी की लाइन याद है सिर्फ तभी सही हो पाएंगे वो। तो उस टाइम पे बहुत ऐसे मतलब मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती थी कि मेरे को तो याद ही नहीं है एनसीईआरटी। लेकिन उस टाइम पे ना ऐसे है कि आपको टेस्ट से ही एनालिसिस करना है। सपोज आपका कोई क्वेश्चन गलत है, कोई नोट्स वगैरह बना लो, वो टॉपिक पढ़ो एनसीईआरटी में से, और आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि तभी आपका वो क्वेश्चन गलत है उस टॉपिक का। तो ये चीज करनी है, और इससे मतलब पेपर ज्यादातर वही उन टेस्ट में से ही आता है जो आकाश के टेस्ट होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना, बस आपकी एनसीईआरटी उससे ही कवर हो जाएगी। और खुद से तो आपने पहले से देखो, मेन पॉइंट तो आप पहले ही पढ़ लोगे, कुछ बहुत बारीक चीजें होती हैं जो रह जाती हैं और वो टेस्ट कवर कर ही देते हैं। सो यही रहता है। थैंक यू सो मच। I would like to invite your father to the stage, because as you said कि उनको योगा करते हुए देखे, and he has been an important part towards you, like focusing on your physical health. So I would want to call him on the stage and have a word with him. So please. सर, सबसे पहले तो many congratulations. NEET 2023 में सानिया has performed this well, और उसका क्रेडिट काफी आपको भी जाता है, because not just her studies but you've also taken care के वो अपनी बॉडी का भी अच्छे से ध्यान रख रही है। तो योगा की इंस्पिरेशन जो आपने इनको दी है, तो वो कैसी रही है? कैसे आप इनको बताते थे अच्छा ऐसे कर ऐसे कर? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छी जर्नी रही। योगा को थोड़ा किया गया है, लेकिन शी हैज टेकन इट एवरीथिंग ऑन हर ओन। आई हैव जस्ट सजेस्टेड, क्योंकि मैं उस जोन में चल रहा हूँ पिछले 2-3 साल से योगा की, दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड हर इट हेल्प्स टू काम डाउन, बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज इन द प्रोसेस, that person can only explain the benefits only. Another person has to come in that phase to get. And being a good girl, she has listened me. Being a good daughter, she has listened me. उसने सुना है, 2-4 बार आर्गुमेंट भी हुए हैं कि ये मेरी एज नहीं है, ऐसा मैंने करना नहीं है, बट उसने ज़्यादा किया भी नहीं है। बट आई थिंक फॉर द लास्ट 1 or 2 months, that thing has helped her, that I personally feel. Because at the end of the day, it's a 3-year exam only. Right. And you're preparing for 2 years. So finally, only studies उस एग्जाम को 3 year को बेटर कर पाएंगी, ऐसा मेरा मानना नहीं है। That's why I motivated her for fitness. That's why I motivated her to get yourself calm down, because at the end of the day, it's 3 hours, and in that time, the study will not pay you back totally. Correct. So not just 2 years, she has been working towards her goals since like last 4 years, as she told me that she was in the foundation course as well. Yes. तो आपका आकाश के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आकाश एक one of the pioneer है in इंडिया में, that everyone knows. तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस आकाश के साथ बहुत अच्छा रहा। टेस्ट सीरीज ने बहुत हेल्प किया। एट द एंड ऑफ द डे इंटेंसिव कोर्स इसने ज्वाइन किया, उसने रियली इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने वो मोमेंटम बना के रखा टिल द एग्जाम। तो सर, लेट्स टॉक अबाउट हर जर्नी, है ना? तो
obviously she is your elder daughter and पहली बार आपकी बेटी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, Yeah. तो आपने भी कई सारी चीजें होंगी जो एक्सपीरियंस की थी. हाँ. So how did you make sure कि Sanya is doing well in her exams? थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि एज फार एज द इट्स पेरेंट्स नेचर बहुत मैटर करती है. मेरे साथ थोड़ा आर्गुमेंट रहता है, लेकिन इसमें मैं बड़ा रोल कहूँगा इसकी मदर का, बिकॉज उसका एक ही मंत्र रहा है और उसने उसे बहुत हेल्प की है. नो लेक्चरबाजी, ओनली लव एंड केयर. As we learned that you gave ANTHE 2021 and your All India rank was 2. So how was it? How did you prepare for it? Or how has the experience been? Truly speaking, I didn't prepare for ANTHE. It was just an evaluation कि मैं कैसा कर रही हूँ, ऐसे ही देख लेते हैं पेपर देख के क्या जाता है. बट अब कोई स्ट्रेस तो था नहीं क्योंकि मैंने ऐसे ही पेपर दिया था, तो वो इतना अच्छा हो गया क्योंकि स्ट्रेस नहीं था. मैंने ऐसे ही दिया, जितना आता है उतना कर लिया. एंड तो फिर इसलिए मतलब वो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ था. सो एंड उस टाइम पे लक भी था. लाइक कुछ क्वेश्चंस थे जो डाउटफुल थे, पर सोचा अपनी कंसाइन से तो वो सही हो गए. पर एज सच, और उसकी मोटिवेशन एक ये भी थी, वहाँ पे ऐसे था कि नासा की कोई ट्रिप थी, सो इट वाज ओनली फॉर टॉप 5. तो आई वांटेड टू कम इन टॉप 5, सो that was the motivating part. And now you are the champion. Obviously that the journey has been very consistent in those terms. पर सर कई ऐसे phases आते हैं जैसे आप बता रहे थे कि है ना ये fight back करती थी because of the stress and everything. तो उस time पे how did you make sure that she is doing well, and were you in touch with the faculty members ताकि, because you know as a parent also you lose your calm and आपको नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, what is right for my child and what is not. Yes. तो उस time पे how did Akash help you in grooming her and taking care of her at home also? They are having very good interaction. If you are having any problem, you can talk to the teacher, and at that moment I think the best जो child सुन रहा होता है वो टीचर की सुन रहा होता है. कई बार ऐसा भी लग रहा है, तो अगर आपने अपना कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है तो आप अपने टीचर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो. ऐसा भी रहता है. नो डाउट आई मस्ट से कि लास्ट 1 और 2 मंथ्स थोड़ा स्ट्रेस रह गया था. थोड़ा स्ट्रेस ये होता है, एज ए पेरेंट बंदा कहता है कि सब कुछ छोड़ दो. मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने कहा सब कुछ छोड़ दो, गैजेट्स भी छोड़ दो, व्हाट्सएप भी नहीं देखना है. तो उस टाइम पर ऐसा था, लेकिन अब मैं अगर फील करूँ तो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी. गॉट दिस यू कैन जज आफ्टर द थिंग ना, बट some impatience or you can say the personal behavior you can't control. मतलब but you can learn from them, but you can't control at that time. तो मैं इसके लिए जरूर कहूँगा, इसकी अचीवमेंट के लिए 2 लाइंस बोलने चाहूँगा. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई मुकाम अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है. अमेजिंग सर. आई कैन इमेजिन कि आपके घर पर आप कैसे इनको मोटिवेट करते होंगे. तो सर इन द एंड मतलब जितने भी अभी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं नीट एस्पिरेंट्स के, आपने अपनी जर्नी के ड्यूरिंग कई चीजें होंगी जो नोटिस की होंगी और आपको लगा होगा अच्छा ये जरूर करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए. तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के लिए आपकी क्या टिप्स रहेंगी? मैं यही कहूँगा कि एज अ जैसे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो फोकस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2 पर जो पेरेंट्स को कहूँगा कि वो सेकंड नंबर पर, सेकंड F जो है वो है फिटनेस. कि फिर मैं उसी चीज़ को कहूँगा, फिटनेस है तो आप पढ़ रहे हो, नहीं तो आप पढ़ रहे हो लेकिन वो जा नहीं रहा. इसलिए फिटनेस पर. थर्ड F इज़ अ फन. यू हैव टू चूज इन विच थिंग यू फील फन, इन टीवी, इन व्हाट्सएप, इन टॉकिंग टू फ्रेंड्स, इन वट एवर वे. तो थर्ड इज मतलब आपको कोई ना कोई अपने लिए फन ढूंढना पड़ेगा. जैसे शी इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट, मोटिवेट हर कि हमने जब भी ये स्पीच भी देनी होगी हम डांस भी करके दिखाएंगे. 4th इज फैमिली. अगर फैमिली की सपोर्ट है तो उसके साथ आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो. अकेला चाइल्ड या सपोर्ट के बिना चाइल्ड एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा. तो मेरा यही कहना चाहूँगा, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए: पर्सनल फोकस, फन, फिटनेस एंड फैमिली. This is such an amazing way to remember it all. Yeah. 4 F's are what you should take care of. Yes. And what are the tips that you would like to give to the future NEET aspirants? जब पढ़ रहे हो तब पढ़ो, जब फन करना है तब फन करो. ऐसा नहीं आप घूमने जा रहे हो वहाँ पे भी आप बुक्स ले जाओ कि है ना हम कार में पढ़ लेंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. और तो बस यही है कि
एंशियस नहीं होना है। आपकी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं जर्नी में, सबके ही आते हैं, चैलेंजेस होते हैं, पर विनर वही है जो उस चैलेंज को मतलब जीत कर आए। ये नहीं कि हाँ मतलब विनर मतलब जिसकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं और वो उसे ओवरकम कर पा रहा है ना, वही असली विनर है। सो उन चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होना है, रादर मोटिवेट होना है कि ओके हमें ये चैलेंज दिया गया है, सो वी विल कंप्लीट इट। एंड कंसिस्टेंसी, आपको 2 साल में कंसिस्टेंट रहना है, चाहे कम पढ़ो पर पढ़ो हर रोज। Well, you've heard it from the champion how to be a champion. It has been a great conversation, sir. Many congratulations to you as well. I wish you all the very best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.